Hello students. Yes, in my previous lecture we have discussed about Nernst equation and its relation with to determine delta G and equilibrium constant. Now we have another topic, that is conductivity or electrolytic conductance. But before going through that topic, we should know certain terms which we are going to use in this कॉन्सेप्ट. तो उससे पहले उस कंसेप्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, उससे पहले हम इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है वो देखेंगे. सबसे पहले है व्हाट आर कंडक्टर्स. कंडक्टर्स एज वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1, दैट इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड. सॉलिड स्टेट में जब है आपको बताया था कंडक्टर्स. कंडक्टर्स मीन्स व्हाट? The substance which allow the current to pass through it are called as conductors. Which allow the passage of current are called as conductors. Conductors में आपके आते हैं good conductor, poor conductor and good and bad conductor. Good में generally we say metallic conductors, जो metals है हमारे, like copper, aluminium. आपने देखा solid state में that they conduct electricity. So first definition is conductors. Conductors are of two types. First one is metallic, which we have discussed in chapter 1, metallic conductors. और दूसरा आता है electrolytic और electrolytes. Electrolytes generally aqueous solution होते हैं. Mostly, not always, but aqueous solution or polar. In metallic conductors, the electrons are charge carrier. यहाँ पर जो है वो electrons हैं, charge carrier है. और electrolytes generally it consists of ions, so ions are charge carrier. So electricity is conducted by ions. So ions are charge कैरियर. ये देखेंगे, ये हम देख चुके हैं. ठीक है. मेटालिक कंडक्टर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड दिस वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. अब आते हैं मेटालिक, तो आप वी हैव डिस्कस्ड इन चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में electrolytes are further classified into 3 categories. 3 categories में classify करते हैं. One is strong electrolyte. Strong का मतलब है those electrolytes which decompose or dissociate into ions completely. Strong का मतलब complete dissociation. अब इसमें कंप्लीट में आएगा जैसे आपका NaCl हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl. वी कैन टेक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, HCl. दे विल अंडरगो डिसोसिएशन अप टू 100%, कंप्लीशन, पूरा कंप्लीट होता है. दूसरे आते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल जैसे हमारी वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिटिक एसिड हो गई, या वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया. दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, एसिटिक एसिड ले लेंगे, कोई भी दूसरी ऑर्गेनिक एसिड है विच अंडरगो डिसोसिएशन बट नॉट टू कंप्लीशन. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास 11 इक्विलिब्रियम चैप्टर में. There will be equilibrium between the unionized and ionized form in the case of weak electrolyte. And the third category is non-electrolyte. Non-electrolyte में अब आपके आ जाते हैं जैसे ग्लास, ऐसे सॉलिड्स या ऐसे सोल्यूशन जो आपके आयोनाइज नहीं होते. एग्जाम्पल इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट लाइक शुगर, एल्कोहल, ये भी आपका आयनाइज तो होगा बट इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्लूकोज, ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हैं बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो फर्स्ट डेफिनेशन आपकी कंडक्टर्स. सेकेंड आ गए हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर.
अब आते हैं जो मेन डेफिनेशन है यहाँ पर रिगार्डिंग कंडक्टेंस। कंडक्टेंस से रिलेटेड जो भी है उसमें सबसे पहले आती है आपके रेसिस्टेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस? रेसिस्ट का मतलब है ओपोज। तो अगर कोई सब्सटेंस करंट फ्लो कर रहा है then it will have some opposing force and that is called as resistance. Resistance is the opposing force provided by the subject to substance to stop the flow of current. उस करंट को फ्लो को रोकने के लिए जो रेसिस्टेंस या opposing force अप्लाई होता है that is called as resistance, denoted by the symbol R and its unit is ohm. You can call it as ohm or we just depict it by the symbol omega. इस तरह से ohm हम represent करते हैं. This is resistance. Now this resistance we actually you might have learnt in class 11th about Ohm's law. ओम्स लॉ जो होता है, ओम्स लॉ में एक्चुअली हम लोगों ने तो ऐसे पढ़ा है एलिफेंट बाय रैट इज इक्वल्स टू कैट. एलिफेंट ई इज योर ईएमएफ. ईएमएफ मीन्स पोटेंशियल. ईएमएफ हो जाता है. आर इज रेसिस्टेंस एंड सी इज करंट और वी कैन से वी इक्वल्स टू आई आर. ये आपका ओम्स लॉ है. वोल्टेज, वोल्ट्स हम कहते हैं इसको. पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस. सो व्हाट इज आर हियर? आर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अपॉन करंट. यही आ जाता है. सो पोटेंशियल अपॉन करंट इज योर रेसिस्टेंस. नाउ दिस रेसिस्टेंस, नोइंग रेसिस्टेंस, वी नेक्स्ट टर्म आएगी आपके इसमें रेसिस्टिविटी. Resistivity, actually it is nothing but specific resistance. जो हमारा specific है. specific का मतलब क्या होता है? एक fix कर दिया हमने. specific, specified यानी कि fixed. तो specific resistance. Previously this term was used, but nowadays IUPAC has said to recommended to use only रेसिस्टिविटी. तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? वी नो दैट रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. नाउ व्हाट इज दिस एल बाई ए? अनदर टर्म आ जाती है ये एल बाई ए. दिस इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, क्योंकि हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की. सो दिस इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट. सो R is the resistance that is offered by the substance, whether it is wire, conducting wire. So L is length of the cell. जो हम ले रहे हैं length upon area of cross section. अगर आप 2 इलेक्ट्रोड या ऐसा कुछ ले रहे हैं तो वायर की जो लेंथ है, लेंथ एंड वो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन L by A. ठीक है. तो रेसिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. वायर अगर पतला होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, वायर मोटा होगा या लंबा होगा उसका रेसिस्टेंस अलग होगा. सो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. Now when we want to remove this proportionality constant, we are having another proportionality constant L by A. ये आपने जब ये proportionality हटाया, we introduce a constant rho. Now this rho is nothing but resistivity. ये आपके हो जाती है resistivity और it is specific resistance. अब इसकी definition जो है, this rho is nothing but R. Rho is equals to R when L is equals to 1 and A is equals to 1. 1 meter and area meter square. This means what? Resistivity को अगर define करना है, resistivity is the resistance that is offered by a cell of unit length and unit area of cross section. ये भी आपका 1 है
और लेंथ भी अगर 1 होती है देन रो इज इक्वल्स टू आर, रो इज इक्वल्स टू आर हो जाता है. बट व्हाट अबाउट यूनिट ऑफ दिस रो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? रो का यूनिट जो होता है इट विल बी, यस यूनिट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट ऑफ रो विल बी इक्वल्स टू ओम मीटर. रो का ए इधर आएगा, ए इंटू आर अपॉन एल, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल. एल तो मीटर है, मीटर स्क्वायर, सो ओम मीटर, और यू कैन से ओम मीटर, और अगर स्मॉलर यूनिट में लेना है तो ओम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ये समझ में आ जाए तो इसके बाद इसी का रेसिप्रोकल होता है. रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस. रेसिस्टेंस अगर अपोजिंग फोर्स है तो उसकी एबिलिटी जो होगी कंडक्ट करने की, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस 1 by r. और कंडक्टेंस कई बुक्स में G लिखा है, कई बुक्स में C लिखा है. यू कैन राइट G इक्वल्स टू 1 by r. G इक्वल्स टू 1 by r, दैट इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? R is expressed in ohm. So unit of G is equals to per ohm. It is ohm inverse, or you can call it as Siemens. S से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो Siemens या लिखेंगे ohm inverse. ठीक है. अब जैसे आपका रेसिस्टेंस से रेसिस्टिविटी था, सिमिलरली फॉर कंडक्टेंस वी विल हैव कंडक्टिविटी. इसमें भी आपका हो जाता है कंडक्टिविटी, और यू कॉल इट एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कपा. कुछ नहीं है, ये आपका कपा है. ठीक है. कंडक्टिविटी इज नथिंग, जिस प्रकार से कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, सिमिलरली कंडक्टिविटी विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी 1 by rho, और यू कैन कॉल इट एज 1 by r into L upon A. 1 by r into L upon A. So what will be the unit of this kappa? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? kappa equals to 1 by, ये तो आपका ओम है, और L के लिए मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द यूनिट? दिस इज पर ओम. मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इज पर मीटर. पर ओम पर मीटर है, और यू कैन कॉल इट एज सीमेन पर मीटर. या फिर सिंपली अगर हम चाहें, इफ दिस लेंथ इज वेरी स्मॉल, then we can use the term centimeter. So kappa is equals to Siemens per centimeter भी हम use कर सकते हैं. I hope I have made these definitions clear. Next जो है factors affecting these electrolytic conductors. Since we are taking electrolytic conductors, electrolyte का मतलब है generally we are taking solutions. तो solution में हम क्या लेंगे? So it will be depending on the nature of the solvent. Solvent कैसा है, solute कैसा है, temperature क्या है, इन सब पे डिपेंड करेगा. So factors affecting electrolytic conductance. Conductance, see the word I am writing, electrolytic conductance. Conductance. अब इसमें है सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इफ योर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टेंस विल बी मोर. ज्यादा ही होगा क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है कंडक्टेंस मोर.
तो वो ज्यादा कंडक्ट करेगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयॉन्स कम होंगे, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। सेकेंड आता है आपका साइज ऑफ द आयन एंड देयर सॉल्वेशन, size of the ions and solvation. Now you see the size of ion and solvation. ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। What do you mean by that, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन? इस केस में जैसे जितना छोटा हमारा कैटायन होगा, the more it will be surrounded by the water molecules. When we say solvation, तो जो solvent molecules है, they will be surrounding and there will be charge separation. The ions will be free to move. So depending on this size, smaller size, it will move fast. So it will conduct more. Larger size, the conduction will be less. Third point आता है इसमें nature of solvent. अब solvent हमारा medium, that is कैसा मीडियम है? इफ वी आर टेकिंग पोलर मीडियम अगर हम लेते हैं जैसे वाटर, देन वाटर इटसेल्फ इज आयनिक, सो देयर विल बी डाइपोल इंटरेक्शन एंड आवर आयंस विल मूव फ्रीली, सो इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. फोर्थ वन, कंसंट्रेशन. Yes, this is very very important. This we will discuss in detail. Concentration of solution. Solution की concentration. It will decide the conductivity. Conductance जो है वो ये decide करेगा. Specific conductivity होगी तो कितनी होगी. Concentration, अब इसमें दो conductivity आगे आएगी आपके, एक मोलार होती है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक, जो भी conductivity specific. These two are varying differently with respect to concentration. So we will discuss this later. Last, temperature. Now what happens? As temperature increases, what happens to the solubility? The movement of ions, they will increase. ये increase होंगे. So conductivity, as temperature increases, conductivity will also increase. So these are the points that affect the electrolytic conductance. जबकि मेटालिक में ऐसा नहीं है. मेटालिक में केवल 3 फैक्टर है. फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक. मेटालिक के लिए सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही कंडक्ट करेगा. दूसरा, नेचर ऑफ द मेटल. मेटल का नेचर कैसा है? मेटल का नेचर मीन्स आपका जैसे है कि वो एस ब्लॉक का है या डी का है या किसी और का है, तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा. एंड थर्ड वन इज टेम्परेचर. अब ये जो टेम्परेचर है आप हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर, इन दिस केस टेम्परेचर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी, तो आयनाइजेशन इंक्रीज होता है. इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टेंस विल इंक्रीज. बट इन दिस केस व्हाट हैपेंस, मेटल्स जो है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, द मेटालिक कंडक्शन विल डिक्रीज, द इलेक्ट्रॉन विल गो टू हायर लेवल. तो यहाँ पर कंडक्टेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. जनरली डिक्रीजेस, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉनिक. ये वाला जो मेटालिक है, मेटालिक कंडक्टर्स, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस. इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस. So 3 factors that affect the electronic conductance. इलेक्ट्रॉनिक का अलग है और इलेक्ट्रोलाइटिक का अलग है. 5 फैक्टर्स है. Rest, next we will discuss about conductivity, molar and specific, in my next lecture. So subscribe my channel so that you will get intimation about my next video. Thank you.